Now should I start with the properties of direct delta function? So the first property of direct delta function is that this integral minus infinity to plus infinity fx delta x minus a can be written as fa. Okay, let's prove it. We take the left hand side. What we are doing is we are breaking this integral into three regions, into three integrals, as we usually do. और first और third वाला integral, because delta function value is 0, goes to 0, only the second integral is left. Using the mean value theorem, हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं इस तरह से fa this integral with delta x minus a, और ये वाला जो आपको है this integral is 1, so this becomes fa, which is your right hand side. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes. So the second property is fx delta x minus a is fa delta x minus a. Let me take left hand side and integrate it with respect to x. Fine. Okay. हमें ये पता है from the first property this integral is fa. Fine. तो हमने क्या किया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया लिमिट्स x minus infinity to plus infinity, integrate with respect to x, and we know that whatever this integral we are getting, its value is fa from first property. What we are doing in the next step is we are taking right hand side and then integrating with respect to x, taking the limits from minus infinity to plus infinity. ठीक है, इसमें से हम fa बाहर निकाल सकते हैं, fa निकाल दिया, this integral is what 1, इसकी वैल्यू भी 1 होती है. Yes, ma'am. तो ये भी fa बन गया. इसका क्या मतलब हुआ, ये जो दोनों इंटीग्रल्स हैं ये और ये दोनों ही fa हैं, तो वो लिख दिया यहाँ पे, देख लो. Fine. That means if these integrals are equal, that means their integrands must be equal. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Third, this is the third property. Third property says that delta ax, this is important property, बहुत बारी पूछी हुई है एग्जाम में, आप देख सकते हो. एंड बाय डिफॉल्ट आपको पूछा नहीं जाएगा that you have to do for which case, you have to solve it for which case. आपको दोनों ही केसेस करने हैं. अगर आपको ये एग्जाम में आ जाता है, प्रूव दैट दिस डेल्टा ax is equal to 1 upon mod a डेल्टा x. तो केस 1 क्या है, केस पॉजिटिव. तो हमने क्या किया, ये ले लिया डेल्टा ax मल्टीप्लाई विद fx, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट्स लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड कंसीडर दिस इंटीग्रल टू बी i. समझ में आया किया क्या मैंने? जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया विद fx, integrating with respect to x, then taking the limits minus infinity to plus infinity. This is an integral. I am calling this integral to be I. Now ax को t ले लिया. Fine. If ax is t, x becomes what? t by a. जहाँ जहाँ x है उसको t by a से रिप्लेस करेंगे, और एक सेकेंड, अच्छा, और dx को dt बाय a से रिप्रेजेंट करेंगे. अच्छा, यहाँ पे माइनस b नहीं आना चाहिए, ax ही आना चाहिए. यही वाला इंटीग्रल यहाँ पे हम कर रहे हैं. सेकेंड केस में आएगा a को हम जब माइनस b लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज डेल्टा ax ओनली. दिस वी आर रिप्लेसिंग x बाय t बाय a
ax by t here, dx by dt by a. लिमिट्स रिमेन द सेम. जब इसको सॉल्व करोगे देख लो तो ये आ जाएगा 1 बाई ए. ये जो 1 बाई ए है इसको बाहर ले सकते हैं. दिस एफ टी बाई ए डेल्टा टी माइनस जीरो डी टी. ये जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा? फ्रॉम दी फर्स्ट प्रॉपर्टी दिस इज व्हाट? एफ जीरो बाई ए. कि जहाँ पे ये जो चीज़ होती है ये एफ ए बन जाती है फर्स्ट प्रॉपर्टी में. Yes, ma'am. ठीक है. एफ एक्स माइनस ए डी एक्स इज एफ ए. So you have f t by a delta t minus 0 dt. It would become simply, this integral would become f0 by a, which is f0 only. How do you write f0 in terms of the integral? Again use first property, fx delta x dx. ये समझ में आया? f0 को ऐसे लिखना है, मैंने ऐसे लिखना है Yes. because this delta x is basically x minus 0. तो a जो है वहाँ पे 0 हो गया, तो this is which is your fa. तो अब मैं अगर दोनों साइड्स को कंपेयर करूँ, which are the two integrals, this one and this one, I am getting delta of minus b नहीं है ये, delta of ax is equal to what? 1 by a delta of x. This is my equation number 1 for case 1. Now case 2 is a can be negative also. Let me take a to be minus of b where b is positive. अगर b भी negative हो जाएगा तो a तो positive हो गया, which is again case 1. हम case 2 solve कर रहे हैं, which is what? a has to be negative. Fine. So we take a to be minus b. बस उसके बाद a को माइनस b कर दिया तो माइनस बी एक्स आ गया. अब माइनस बी एक्स को t पुट करोगे, सारा कुछ चेंज करोगे. See that is there any problem? And then you compare both the sides. You will get equation number 2. Then combining 1 and 2, you can write mod. See that it is clear to all of you. If there is any problem, please let me know. बिल्कुल सेम जैसे केस 1 किया उसी तरह से कर रहे हैं. कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? No. No, ma'am. ठीक है. अभी 4-5 प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर आपको लिखने के लिए दूंगी, फिर बाकी की करेंगे. There are 10 properties and no book is having this all the properties mentioned simultaneously. एक बुक में कुछ प्रॉपर्टी है, किसी में कुछ है, ऐसा है हमेशा. wherever you see. So delta of minus x is equal to delta x. ठीक है. तो डेल्टा फंक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब इस तरह से भी प्रूव करा जा सकता है, पूछा जा सकता है यहाँ प्रूव दैट डेल्टा फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. ये भी प्रूव. तो एक तरीका तो क्या है कि प्रॉपर्टी 3 पहले प्रूव करो और उसमें ही प्रॉपर्टी 3 क्या थी जो अभी हमने प्रूव करी ये वाली, और उसी में ही आप क्या करो a को -1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा. बट पहले प्रॉपर्टी 3 प्रूव करनी पड़ेगी. नहीं तो अगर आपको प्रॉपर्टी 3 प्रूव नहीं करके अलग से ही आपको इसको करना है, देन यू कैन डू बाय द सेकेंड मेथड. व्हाट यू विल डू इज डेल्टा एक्स लिया, एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट with respect to x, limits, taking the limits as minus infinity to plus infinity. This integral you call it as I1 and its value would be f0 from property number 1. Property number 1 बहुत useful है. Yes, ma'am. Similarly आपने क्या किया, delta of minus x ले लिया, multiply with fx, integrate with respect to x, take the limits minus infinity to plus infinity. ठीक है. और जैसे ax डेल्टा ax को सॉल्व किया था ना, उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया. जो यहाँ पे अब a क्या है -1 है, तो -x को आपने t पुट किया एंड अकॉर्डिंगली
you find out that it also comes out to be, this integral also comes out to be f0. So I1 and I2 both are coming out to be f0. So both are equal. तो इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है? fx सेम है, इंटीग्रल सेम है, लिमिट सेम है, सिर्फ क्या चीज़ डिफरेंट है? तो वो भी सेम होना चाहिए since these integrals are same equal. So delta x would be equal to delta of minus x. ठीक है? Yes, ma'am. Let us take this fifth property. x into delta x is 0. तो क्या किया? x into delta मैम x ले एक लिया. बार थोड़ा सा ऊपर, मैम वहाँ पे ना एक टर्म नहीं समझ आई मुझे, वहाँ पे आपने जो ऊपर था, यहाँ पे मैम ये लिमिट चेंज कैसे होगी? जो मतलब देख लो। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डाल ये रहे थे, देख फिर लो। बाद में इन्फिनिटी। क्या कह रहे हो? सॉल्व करके देखो ना, मैंने तो एक एक स्टेप लिखा हुआ है. माइनस एक्स को टी ले रही हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा फिर? फ्लिप नहीं हो जाएगी? जी मैम आ गया, समझ गया. ठीक है. और बिकॉज आपके पास यहाँ एक माइनस साइन है, फिर इसलिए इसको मैं दोबारा से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कर सकती हूँ. एंड दिस इंटीग्रल इज व्हाट? यूजिंग प्रॉपर्टी 1 इट इज f ऑफ माइनस 0, जो कि f0 ही होता है ना. मैम आ गया. ठीक है. Okay, this I'm taking x delta x multiply with fx, इंटीग्रल ले रहे हैं, इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है. तो ये this is equal to what? This is equal to using property number 1, this is equal to 0 f0. समझ में आया 0 f0 कैसे आया? इसको सीख. प्रॉपर्टी 1 क्या होता है? Yes, ma'am. fx delta x minus a dx इक्वल टू f ऑफ a. फाइन. अब यहाँ पे a तो 0 है और fx की जगह मेरे पास x fx है, तो ये आ जाएगा 0 f0. Yes, ma'am. ठीक है. अभी जो 0 f0 है उसको इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकते हैं. फाइन. है ना. ठीक है. अब ये इंटीग्रल आ गया और ये इंटीग्रल आ गया, इनको दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक साइड पे तो x डेल्टा x और एक साइड पे है 0, तो x डेल्टा x 0 बन गया. बाकी सब कुछ तो सेम है ना. इंटीग्रल जो है ओवर विद रिस्पेक्ट टू x है, fx इज देयर, इंटीग्रल की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस. क्या डिफरेंस है दोनों में? सिर्फ x डेल्टा x है यहाँ पे और यहाँ पे 0 है. अब सिंस दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, ठीक है, तो x डेल्टा x तो 0 के बराबर होना चाहिए. ठीक है. Yes, ma'am. अभी लिखना है या करवा दूं पूरा फिर ट्यूसडे? तो डेल्टा डैश मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स, तो क्या होगा? माइनस ऑफ डेल्टा डैश ऑफ माइनस एक्स. तो क्या किया? डेल्टा डैश एक्स लिया यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई किया किससे? एफ एक्स, और इंटीग्रल लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इसको मैं कह रही हूँ I1. जनरली हम यही करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है. अब ये क्या किया? इसको बाय पार्ट्स सॉल्व कर रहे हैं, और जब ये बाय पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉपर्टी वगैरह लगाने के बाद ये आ जाता है. ठीक है. सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन.
नाउ I2 कौन सा इंटीग्रल लिया? अब क्या किया मैंने, जो राइट हैंड साइड पे है ये लिया, देखो ये यहाँ ले लिया डेल्टा डैश माइनस एक्स, फिर से वही काम किया है, एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रल लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, फिर से उसको बाय पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और इसकी वैल्यू जो है क्या आ रही है, एफ डैश ऑफ 0। प्रॉपर्टी 1 इज वेरी वेरी यूजफुल, सो यू कैन सी दैट ये जो I1 है और I2 में क्या रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क है, so, वही मेरे को चाहिए भी था। वी आर कंपेयरिंग both the sides, so we will find that this property is satisfied. This is property number 7. X delta dash x is minus delta x. क्या किया, x delta x ले लिया, ये देखो यहाँ ले लिया x delta dash x, multiply with fx, integrate with respect to x, limits minus infinity to infinity, फिर वही किया, देखो बाय पार्ट सॉल्व करने की कोशिश की है, and when we are solving it by parts you will get minus f0, which is what, f0 क्या होता है, f0 can be written in the integral form as this, बस ये वाला एक इंटीग्रल है, एक ये इंटीग्रल आया आपके पास, दोनों को कंपेयर कर दो, क्या डिफरेंस है दोनों में, x डेल्टा डैश x है एक साइड पे, दूसरी साइड पे क्या है, माइनस ऑफ डेल्टा x, ये आ गया, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मेंशन किए हुए हैं आपके सिलेबस में, और इसी तरह से इसका मार्क्स भी इतने का ही आता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन, या 3 to 5 मार्क्स आते हैं, बट दोज ऑफ हू वांट टू स्कोर full out of full cannot just skip this topic, you have to study this also, ठीक है, तो अगर फुल का एम करोगे तभी तो फुल आ पाएंगे ना मार्क्स। Okay, this is 8th property, this integral is equal to minus of f dash 0, तो देख लो एक बारी, इस इंटीग्रल को बस सॉल्व कर रहे हैं बाय पार्ट्स एंड यू विल ऑटोमेटिकली f dash 0 माइनस ऑफ f dash 0 आ जाएगा। This is 9th property, this integral which is delta x minus a delta x minus b dx is delta a minus b, तो क्या किया मैंने, इस इंटीग्रल को लिया, ये देखो यहाँ पे ये इंटीग्रल लिया और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, एफ ए से मल्टीप्लाई किया, अच्छा इस इंटीग्रल से मल्टीप्लाई किया, दिस इंटीग्रल इज ओवर ए, ठीक है, इस इंटीग्रल पूरे इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करा है किसको, लेफ्ट हैंड साइड, एंड वट एवर इंटीग्रल आई एम गेटिंग नेम दैट एज आई। क्लियर है क्या कर रहे हैं, क्या कर स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, स्टार्टिंग ठीक हो जाएगी, पूरा बड़े आराम से हो जाता है। ओके, सो दैट इज, ये वाला जो इंटीग्रल हम कंसिडर कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहे हैं, ये जो एफ ए डी है ना, इसको डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए के साथ लिख रही हूँ, ये देखो, ठीक है, ठीक है, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, ये जो इंटीग्रल लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी बताएगा कोई, यूज प्रॉपर्टी 1, fx, is it clear everybody how this Yes, is ma'am. f,
how this is fx, it is clear to everybody, or is there any confusion? This is fx. How? Is it clear to everybody? Shouldn't it be like minus fx? Or say ठीक है क्योंकि प्रॉपर्टी जो आपकी 1 होती है उसमें क्या होता है fx x माइनस ए dx इज fa. अब क्या है x की जगह मेरे पास क्या है a है बस. फाइन. तो दिस वुड बी fx. तो इस इंटीग्रल को मैं ये जो इंटीग्रल लिख देती हूँ. अब ये बताओ ये जो इंटीग्रल बच गया, इज दिस fb और नॉट? Yes, ma'am. Yes. yes. Fine. So this is fb. Now this fb in integral form, can I write it like this or not? Yes. Why I am doing it? Because now I have to compare this integral, the left hand side, as well as the right hand side, in order to get this integral value. So I compare both the sides. So integral minus infinity to infinity, fa dA सब कुछ सेम है. सिर्फ क्या अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा ऑफ a minus b, which is what we had to do. ठीक है. Yes, ma'am. This is your 10th property, which is the last property. ये कभी आई नहीं है, but still we should, for the sake of completion, सारी properties की हैं तो एक बार ये भी कर लेते हैं. So delta of x square minus a square is 1/2 mod a. Delta x minus a plus delta x plus a. A is a positive number. A is positive. So let us take the left hand side, multiply it with fx and integrate with respect to x, taking the limit of the integral as minus infinity to plus infinity. ठीक है. अब मैंने क्या किया, इस इंटीग्रल को मैंने ब्रेक कर लिया माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है. क्यों मैं कर रही हूँ, यू विल लेट अभी पता चलेगा. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यू ले रहे हैं, तो x की वैल्यू मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं. तो आपके पास ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है, इसमें जो x की वैल्यू है आप विद अ नेगेटिव साइन लोगे, एंड ये वाला जो इंटीग्रल है उसमें पॉजिटिव वैल्यू लोगे. क्लियर है ये चीज? टेकिंग नेगेटिव साइन इन द फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है, एंड पॉजिटिव साइन इन द सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3. Yes. So that is why I have broken this integral into two parts, so that अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो x अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो ये आ जाएगा f, x की जगह माइनस ऑफ रूट ऑफ u माइन प्लस a स्क्वायर, देन डेल्टा u, देन दिस वुड बिकम माई dx. लिमिट्स क्या हो जाएंगी? लिमिट्स वुड बी इन्फिनिटी टू माइनस a स्क्वायर. क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. एंड सिमिलरली इन दी सेकेंड टर्म, ये वाला जो टर्म है इसमें मैंने क्या किया, x की पॉजिटिव वैल्यू ली है. क्लियर है ये? Yes or no? Clear तो. Am I audible? ठीक है. Yes, ma'am. ओके. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अच्छा ये जो माइनस साइन है यहाँ पे जो है, इसकी वजह से मैंने इसकी लिमिट्स को फ्लिप कर दिया. तो दिस बिकम्स माइनस ए स्क्वायर टू इन्फिनिटी अगेन, एंड जो ट्वाइस ऑफ
ये यहाँ ले लिया, दिस बिकम्स डेल्टा ऑफ u माइनस 0 लिख सकती हूँ ना u की जगह, एंड du साथ में आ जाएगा du, फाइन। एंड इसको ऐसे ही लिखा है, बट u की जगह u माइनस du लिख रहे हैं, u माइनस 0 लिख रहे हैं बस, so that I can use which property I am using here. Can anyone tell me? ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, नीचे ये सब मैंने लिखा हुआ है, देख लो। As this integral is f है, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एंड अगर x माइनस a है तो ये f0 है, अगर ये x प्लस a होता है तो ये f माइनस a हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन के साथ है, तो दिस बिकम्स f माइनस a अपॉन 2, u की जगह 0 लिखना है ना यहाँ पे, मॉड a, रूट ऑफ a स्क्वायर इज यहाँ पे लेंगे तो मॉड a, एंड दिस बिकम्स f a अपॉन 2 मॉड a। Then I'm just writing f minus a की जगह this integral, f a की जगह this integral बस, so that I can take 1 upon 2 mod a common, and this integral also can be taken common, fx can be also taken out, और अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, डेल्टा x प्लस a प्लस डेल्टा x माइनस a, तो ये आ गया मेरे पास ये देख लो, ये वाला टर्म, ठीक है। तो what is the left hand side is this, right hand side is this, comparing both of these, देखो इंटीग्रल सेम है with respect to x, limit same है, then I have fx which is same. What is the difference here is, since these two integrals are equal, so therefore my delta x square minus a square should be equal to 1 upon 2 mod a into this square bracket. If you're coming on Yes. Tuesday, it's fine. Otherwise, I can share the properties. से पहले तो आप लिख ही चुके हो, है ना? तो no need of sharing that. Screenshot में इसके share कर सकते हो। Yes. नहीं तो आप अभी लिख सकते हो. That is your choice. Now this मैम is अटेंडेंस ले ली? कब लिए मैंने, आपने देखा? मैंने तो स्क्रीन शेयर करी हुई है। अटेंडेंस लूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। और अभी अटेंडेंस, अभी क्लास का टाइम ओवर नहीं हुआ है।